بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، دس از عاطف احمد، یور فزکس ٹیچر۔ بچوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں امیٹر کو، اور ہم سیکھیں گے کہ کس طرح سے ایک گیلوانومیٹر کو امیٹر میں کنورٹ کیا جاتا ہے اور ہم کیوں ایک گیلوانومیٹر کو امیٹر میں کنورٹ کرتے ہیں۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کریں گے جی امیٹر کے بارے میں۔ بچوں، یہ جو لفظ امیٹر ہے نا، یہ امپیئر میٹر سے بنا ہے۔ امپیئر کا مطلب ہوتا ہے یونٹ آف کرنٹ، ٹھیک ہے، اور میٹر مطلب میجرنگ انسٹرومنٹ۔ تو یہ ہمارے پاس ایک ایسا میجرنگ انسٹرومنٹ ہوتا ہے جس کی ہیلپ سے ہم کرنٹ کو امپیئرز میں میجر کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی لیے ہم اس کو امپیئر میٹر اور شارٹلی امیٹر کہتے ہیں۔ اس کو سمپل وے میں ڈیفائن کریں تو ہم یوں ڈیفائن کر سکتے ہیں، اٹ از اے میجرنگ انسٹرومنٹ یوز ٹو میجر الیکٹرک کرنٹ ان اے سرکٹ۔ یہ ایک ایسا میجرنگ انسٹرومنٹ ہے جس کو کرنٹ میجر کرنے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ گیلوانومیٹر بھی تو ہمارے پاس ایک کرنٹ میجرنگ انسٹرومنٹ ہے، تو پھر اس کی کیا ضرورت پیش آئی؟ بچوں، گیلوانومیٹر جو ہے وہ ایک سینسٹیو انسٹرومنٹ ہے، ٹھیک ہے نا، اور یہ جو بھی سینسٹیو انسٹرومنٹ ہوتا ہے وہ لارج کوانٹٹی میں میجرمنٹ پرفارم نہیں کر سکتا۔ اس سے جسٹ ہم چھوٹی چھوٹی میجرمنٹس لیتے ہیں، لائک فیو ملی ایمپیئرز میں کرنٹ ہے تو ہم اس کی ہیلپ سے میجر کر سکتے ہیں۔ بات سمجھیے؟ تو اگر آپ کو زیادہ کوانٹٹی میں کرنٹ میجر کرنا ہے تو پھر آپ گیلوانومیٹر کو استعمال نہیں کرتے، پھر آپ امیٹر کا استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اس کی ریزن کیا ہوتی ہے کہ گیلوانومیٹر جو ہے وہ تھوڑے سے کرنٹ پر ہی فل ڈیفلیکشن شو کر دیتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس میں کرنٹ میں اور ڈیفلیکشن کا جو اینگل ہے اس کے درمیان ایک ڈائریکٹ ریلیشن ہوتا ہے۔ اگر زیادہ کرنٹ پاس کرے گا تو یہ زیادہ ڈیفلیکشن شو کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ذرا دیکھیے، اگر تو بہت تھوڑا سا کرنٹ ہے کہیں پہ اور آپ اس کو چیک کرنا چاہ رہے ہیں، اس کی کوانٹٹی کو میجر کرنا چاہ رہے ہیں، آپ گیلوانومیٹر کا استعمال کرتے ہیں تو یہ اپنی زیرو سے تھوڑی سی ڈیفلیکشن شو کر دیتا ہے، تو آپ اس کو میجر بھی کر لیتے ہو۔ اگر اس سے زیادہ کوانٹٹی میں کرنٹ ہوا تو پھر بھی کچھ ڈیفلیکشن بڑھ جاتی ہے، پھر بھی کرنٹ میجر کر سکتے ہو، یہاں تک بھی کرنٹ میجر کر سکتے ہو۔ پھر ایک پوائنٹ آتا ہے کہ یہ اپنی میکسیمم ڈیفلیکشن شو کر دیتا ہے۔ اب اس کے بعد اس سے زیادہ ویلیو کوئی بھی کرنٹ ہوگا تو اس کو یہ میجر نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ اپنی فل ڈیفلیکشن شو کر چکا ہے، اس سے زیادہ وہ ڈیفلیکٹ کر ہی نہیں سکتا، اس لیے اس کو آپ استعمال نہیں کرتے پھر کرنٹ کی میجرمنٹ کے لیے۔ تو وہاں پھر ہمیں ضرورت پیش آتی ہے جی امیٹر کی۔ بات سمجھ گئے؟ اچھا جی، تو یہ جو ہم امیٹر استعمال کرتے ہیں، یہ امیٹر بیسیکلی گیلوانومیٹر سے ہی موڈیفائی کر کے بنایا گیا ہے۔ اس میں چھوٹی سی موڈیفیکیشن کرتے ہیں اور ہم امیٹر بنا لیتے ہیں، اور یہ لارج کوانٹٹی آف کرنٹ کو میجر کرنے کی اہلیت رکھتا ہے۔ چلیے دیکھتے ہیں جی کیسے۔ اب آپ سیکنڈ ہیڈنگ لگائیں گے جی، کنورژن آف گیلوانومیٹر ٹو امیٹر۔ اس میں کیا کرنا ہوتا ہے، آپ نے سمپلی گیلوانومیٹر کے ساتھ ایک بہت ہی لو ویلیو کا ریزسٹنس آپ نے لگانی ہے، یعنی بہت چھوٹا ریزسٹنس لگانی ہے آپ نے، ٹھیک ہے نا۔ یہاں پہ اس کے ساتھ آپ نے پیرللی کنیکٹ کر دینا ہے، اس کو شنٹ ریزسٹنس کہتے ہیں، ویری ویری لو ریزسٹنس ہوتی ہے یہ، ٹھیک اوکے۔ ایسے آپ نے پیرلل میں کنیکٹ کر دیا، دو ٹرمینل ایسے باہر نکال کے ایک باکس میں ایسے اس کو کلوز کر دو، تو لو جی آپ کا امیٹر ہو گیا تیار۔ سمجھ گئے؟ اوکے جی۔ اچھا، اب اس میں آخر ایسا کیا ہوتا ہے یہ تو میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن پیپر میں لکھنا کیسے وہ بھی ساتھ تھوڑا سا سیکھ لیجئے۔ کنورژن آف اے گیلوانومیٹر ٹو امیٹر از ڈن بائی کنیکٹنگ اے شنٹ ریزسٹنس ان پیرلل ود اٹ، ٹھیک ہے۔ جسٹ آپ ایک شنٹ ریزسٹنس کو پیرللی کنیکٹ کرتے ہو، ٹھیک ہے، تو یہ کیا کرتا ہے جی، یہ ہمارے پاس ایک امیٹر میں کنورٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہیں کہ سر آخر ایسا اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ جسٹ ایک شنٹ ریزسٹنس اس کے ساتھ لگا رہے ہو اور یہ اب زیادہ کرنٹ کو میجر کرنے کی اہلیت رکھتا ہے، اب اس کی ہیلپ سے ہم زیادہ کرنٹ کو میجر کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کنسیپٹ کو سمجھنے کے لیے ایک چھوٹی سی ایگزامپل آپ کو سمجھاؤں گا۔ اس کنسیپٹ کو سمجھنا آپ نے، اگر آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا تو امیٹر کا یہ سارے کا سارا جو ٹاپک ہے وہ آسانی سے آپ انڈرسٹینڈ کر پائیں گے، اوکے۔ چلیے دیکھتے ہیں جی۔ اب اس میں کیا ہے جی، ایک سرکٹ ہمیں دیا گیا ہے، یہاں پر وولٹیج وی لگائے گئے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ اس طرح سے کرنٹ جو ہے وہ آئی اس میں سے فلو کرتا ہوا جا رہا ہے، اور دو پاتھ ہیں اس کے پاس اور الگ الگ ریزسٹنس لگی دونوں پاتھ کے۔ ایک جو ہے وہ R1 ریزسٹنس والا پاتھ ہے جس میں 9 اوہم کی ریزسٹنس لگی ہے، دوسرا جو ہے ہمارے پاس R2 اس میں جو ہے سیکنڈ پارٹ ہے اس میں 1 اوہم کی ریزسٹنس لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اب کرنٹ آئی اس میں یوں فلو کرتا آتا ہے، اگر دو پارٹس میں یہ ڈیوائڈ ہوگا، کچھ کرنٹ ادھر جائے گا کچھ کرنٹ ادھر جائے گا، اور یہاں سے پھر واپس اس میں آ جائے گا ایسے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اس میں سے کتنا کرنٹ جائے گا اور اس میں سے کتنا کرنٹ آئے گا، یہ کیسے پتہ چلے گا؟ یہ کون ڈیسائیڈ کرتا ہے؟ ان دونوں رزسٹرز کے درمیان جو ریشو ہے نا، ان سے پتہ چلے گا کہ ان میں کتنا کتنا کرنٹ پاس کرتا ہوا جائے گا، ٹھیک ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، دیکھو ذرا، یہ جو ہمارے پاس رزسٹر ہے، میں یہاں پہ لکھتا ہوں جی R1 اور نیچے لکھ دیتا ہوں جی R2، ان دونوں میں ریشو آ گئی۔ اب ذرا دیکھیے R1 کس کے ایکول ہے جی، R1 = 9 اوہم، ٹھیک ہے، اور R2 کتنا ہمارے پاس 1 اوہم ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کٹ گیا، ہمارے پاس سمپلی ریشو کیا آئے گی، R1 to R2 ریشو = 9 آ جائے گی، یعنی اگر میں کہوں کہ R1 جو ہے وہ = 9 ٹائم R2 ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ آ گیا ہمارے پاس یہ ایک ریلیشن کہ R1 جو ہے وہ 9 ٹائم R2 ہے، سمجھ گئے؟ اور ان میں جو ریشو ہے وہ کس کی ایکول ہے جی، 9 کی ایکول ہے۔ اب ہم نے ان میں کرنٹ کی ریشو نکالنی ہے، تو بہت ہی آسان ہے، آپ نے اوہم لا کا استعمال کرنا ہے۔ یہاں پر کیا کریں گے جی، آپ میں بتا دیتا ہوں آپ کو۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ریزسٹنس کا فارمولا ہوتا ہے فرام اوہم لا، R = V/I ہوتا ہے،
ऐसा ही है ना, V डिवाइडेड बाई I। तो आप इस केस में इसको कह लीजिए जी रेजिस्टेंस R1 है, करंट जो पास कर रहा है वो I1 है, वोल्टेज V है। समझ गए? अच्छा, और जो दूसरा है रजिस्टर R2, ठीक है, वो ये वाला है, इसमें से जो करंट पास करके जा रहा है वो है I2, तो वोल्टेज V ही है क्योंकि दोनों पैरेलल हैं, ठीक है, और साथ में आएगा जी मेरे पास ये I2, ये आ गए दोनों, ठीक है। दोनों वैल्यूज उठा के यहाँ पुट कर दो R1 और R2 से, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि R1 और R2 की रेशो ही हमें ये बताएगी कि इनमें किस रेशो से करंट फ्लो करता हुआ जाएगा, ठीक है। इन रेजिस्टेंस की रेशो डिसाइड करती है कि किस रेशो से फ्लो करता हुआ करंट इनमें से जाएगा। अच्छा जी, तो क्या करेंगे, दोनों की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए, या सिंपली आप इसको मैं क्या कहता हूँ जी R1, इसको 1 इक्वेशन कह देता हूँ, इसको 2 कह देता हूँ, इन दोनों को डिवाइड कर लीजिए, बात एक ही है। या फिर आप R1 R2 की जगह पर वैल्यू पुट कर दीजिए। तो मैं वैल्यूज पुट करता हूँ R1 R2 की जगह पर, यह आएगा V डिवाइडेड बाय I1, ठीक है, और डिवाइडेड बाय R2 की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, V डिवाइडेड बाय I2, एंड दैट इज इक्वल टू 9, ठीक है। अब ये दोनों फ्रैक्शंस हैं, डिवाइड हो रही हैं, इस फ्रैक्शन को मैं किस में चेंज करूंगा, मल्टीप्लिकेशन में चेंज करूंगा, तो क्या होगा, ये उल्टा होकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं ऐसे, ये आ जाएगा मेरे पास V बाय I1 और मल्टीप्लाई, ये डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में चेंज होगी, फिर I2 ऊपर आएगा और V नीचे, यानी सिंपल जो हमारे पास रूल्स होते हैं मैथमेटिक्स के, उन्हीं को इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं। V से कट जाएगा तो ये आएगा जी मेरे पास I2 टू I1 रेशियो इज इक्वल टू 9। अब देखिए करंट की रेशियो में मिल गई। अब ये रेशो क्या बताती है, ये रेशो हमें ये बता रही है कि भाई ये जो I2 है ना वो इक्वल टू 9 टाइम I1 होगा, I2 इक्वल टू 9 टाइम I1 होगा। बात क्लियर हुई? ये रहा हमारा I2, ये I1 के मुकाबले में 9 टाइम होगा, यानी समझ लो कि अगर इधर से 1 एम्पीयर करंट फ्लो करता है तो नीचे से 9 एम्पीयर करंट फ्लो करेगा। ये रेशो जो है वो हमें करंट में मिल गई। कैसे पता लगी है? इन रेजिस्टेंस की रेशो से। ये रेजिस्टेंस की रेशो डिसाइड करती है कि इनमें करंट किस रेशो से डिवाइड होगा। वो ये बहुत ही आसान सा रूल इस्तेमाल करके ओहम लॉ मैंने आपको समझा दिया, ठीक है बच्चों। अच्छा जी, अब क्या होता है जी जरा देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं यहां से 100 मिली एम्पेयर का करंट पास कराता हूं, ठीक है, तो इधर से कितना पास करेगा हमारे पास 10 मिली एम्पेयर, और नीचे कितना पास करके जाएगा, नीचे जाएगा हमारे पास 90 मिली एम्पेयर। बात समझ गए? अच्छा, अगर मैं ऐसा करता हूं कि यहां पर मैं 1000 मिली एम्पेयर, यानी सिंपल वे में कहूं तो 1 एम्पेयर वो पास कराता हूं, तो यहां से कितना पास करके जाएगा जी, यहां से पास करके जाएगा 100 मिली एम्पेयर पास करेगा, और नीचे उसका 9 टाइम यानी 900 मिली एम्पेयर करंट पास करके जाएगा। बात समझ गए? अब ये इन रेजिस्टेंस की रेशियो से हमें एक चीज क्लियर हो गई कि भाई इन दोनों में जो करंट डिवाइड होगा वो 1:9 से डिवाइड होगा, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं जी, मैं इसको रेस कर देता हूं ऐसे, मैं इसको रेस कर दिया, इसको भी रेस कर देता हूं ऐसे, ठीक है। अब आपको एक चीज पता चल चुकी है कि इधर और इधर जो करंट की रेशियो है ना, इधर अगर इधर 1 एम्पेयर तो इधर 9 एम्पेयर, यानी नीचे से 9 गुना ज्यादा करंट गुजरेगा, सही है। अच्छा, मैं कहता हूं जी यहां से जो करंट फ्लो करके जा रहा है ना इधर से, वो है 3 मिली एम्पेयर, तो सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है, तो मुझे पता है कि अगर ऊपर वाले रजिस्टर से 3 मिली एम्पेयर करंट गुजरेगा तो नीचे वाले से उसका 9 टाइम गुजरेगा, यानी 27, नीचे से मिल के आएगा 27 मिली एम्पेयर, तो दोनों इकट्ठे होकर इस सर्किट से फ्लो करके जाएंगे, ठीक है। ये आई की वैल्यू क्या बन जाएगी, 3 + 27 यानी 30 मिली एम्पेयर। तो अगर मैं सिर्फ इसकी वैल्यू जान लूं, ठीक है, तो मुझे पता चल जाएगा कि सर्किट के अंदर कितना करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। इस रेजिस्टर से करंट कितना पास किया, 3 मिली एम्पेयर। तो मैं पूरे सर्किट में करंट बताने की अहलियत रखता हूं कि अगर ऊपर से 3 मिली एम्पेयर पास कर रहा है तो नीचे से 9 टाइम पास करेगा, यानी 27, तो मिलकर अभी कितना बन गया, कितना बन गया हमारे पास 30 मिली एम्पेयर। ये वो कॉन्सेप्ट है जिसको इस्तेमाल करके हम इसमें लार्ज वैल्यू ऑफ करंट को भी मेजर करने के काबिल हो गए हैं। हम क्या करते हैं, ये देखो मेरी बात गौर से सुनो। एक हमने नीचे रखी ये रेजिस्टेंस, ये वाली, ठीक है, ये शंट रेजिस्टेंस है, वेरी लो रेजिस्टेंस है, और एक हमने ऊपर ये गैल्वेनोमीटर की अपनी भी रेजिस्टेंस है। अब ये मान लीजिए कि ये वाली वैल्यू जो है वो हमारे पास Rg की है, और ये वाली जो वैल्यू है वो हमारे पास ये वाली है जो शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू है, ठीक है। अब जैसे इन दोनों में एक रेशो है ना, ठीक है, इन R1 और R2 की रेशो से डिसाइड होता है कि इनमें करंट की क्या रेशो होगी। जैसे इनकी रेशो से डिसाइड हुआ कि ऊपर वाले और नीचे वाले में 1:9 है, यानी ऊपर से 1 एम्पेयर तो नीचे से 9 एम्पेयर करंट पास करेगा। बिल्कुल इसी तरह से ना यहां पर भी एक रेशो डिसाइड होती है, ठीक है। लेकिन यहां पर हम, क्योंकि हम जो बेसिकली ग्रोनोमीटर बनाते हैं ना, वो तकरीबन कोई 1 मिली एम्पेयर से लेकर ना ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिली एम्पेयर तक करंट को मेजर करता है, इससे ज़्यादा नहीं मेजर करता। लेकिन हमारे पास जो करंट होता है ना वो तो एम्पेयर्स में भी होता है, मेरी बात समझियो। अब वो जो एम्पेयर है ना वो हमारे पास कितना है जी, 1 एम्पेयर बराबर होता है कोई लगभग 1000
मिली एम्पेयर के, 1000 मिली एम्पेयर होंगे तो 1 एम्पेयर बनेगा, ठीक है। अच्छा, अब इतना बड़ा करंट अगर इसमें से पास करेंगे तो जल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हमने ऐसा करना है फिर के इसके साथ ना, इसके साथ कोई वेरी लो रेजिस्टेंस लगा देंगे, इतनी लो रेजिस्टेंस लगाएंगे कि इन दोनों में जो रेशो होगी ना, रेशो वो तकरीबन कोई 1000 के करीब करीब होगी। यानी अगर ये 1 ओम है, मतलब समझ लीजिए ये 1000 ओम है तो ये 1 ओम होगा, समझाने के लिए कह रहा हूँ सिर्फ। अगर ये 1000 ओम का हो तो ये लगभग कोई 1 ओम का होगा, यानी इतना करीब 1000 के करीब करीब इनमें जो है वो रेशो होती है। मेरी बात समझो, ठीक है। तो तब जाके ये इतने बड़े करंट को आसानी से मेजर कर सकता है। अब कैसे, मैं आपको इसी एग्जांपल से समझाता हूँ। देखो जी, अब हमारे पास ये समझ लीजिए, मैं समझने के लिए कह देता हूँ कि ये जो हमारे पास है ना, ये वाला, ये है जी हमारे पास 999, ठीक है। इसकी रेजिस्टेंस है अप्रोक्सीमेटली 1000 है, ठीक है ना। अच्छा, और नीचे वाला जो है वो हमारा 1 ओम का ही है, ठीक है। मेरी बात समझ गए? अच्छा, तो मैं यहाँ पे इसको ऐसे रेज कर देता हूँ। तो इसी रेशियो से आप ये निकालोगे ना, तो अगर यहाँ पर मैं 1 एम्पेयर यानी कितना होता है जी हमारे पास 1000 मिली एम्पेयर करंट पास कराऊंगा, ठीक है। तो ऊपर क्योंकि बहुत हाई रेजिस्टेंस है, नीचे बहुत लो है, ये 1:199, तो इनमें जो करंट की रेशो होगी ना, जैसे 1:9 थी ना, अब ये 1:999 होगी। यानी ऊपर से अगर सिर्फ 1 मिली एम्पेयर करंट पास करेगा ना, तो नीचे से 999 मिली एम्पेयर करंट पास करके जाएगा, ठीक है। अब ये मुझे कैसे पता चला? इन दोनों की रेजिस्टेंस की रेशो से। बात समझ आई? इन दोनों की रेजिस्टेंस की रेशो से मुझे पता चल गया कि करंट की क्या रेशो होगी। ऊपर जो है वो रेशो अगर 1, ये रेशो 999 होगी। तो अब अगर मैं यहां पर 1 एम्पेयर करंट दे देता हूं तो वो तकरीबन होता है 1000 मिली एम्पेयर के। तो ऊपर जो है वो सिर्फ 1 मिली एम्पेयर जाएगा और नीचे से एक ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट पास करके जाएगी, क्योंकि ये बहुत लो रेजिस्टेंस है, शंट रेजिस्टेंस, ठीक है। कितनी 999 मिली एम्पेयर करंट नीचे से पास करके जाएगा, ठीक है ना। तो अब ऊपर वाला गैल्वेनोमीटर है वो सेफ रहेगा, उसमें सिर्फ 1 मिली एम्पेयर करंट गुजर जाए, ठीक है। नीचे रेजिस्टेंस बहुत लो रखी है हमने, शंट रेजिस्टेंस, ज्यादा करंट उसमें से गुजर के जाएगा। अब ऊपर वो शो कर रहा है 1 मिली एम्पेयर, लेकिन मुझे ये पता है कि इन रेजिस्टेंस की रेशो क्या है। अगर ऊपर से 1 मिली एम्पेयर पास करके जाएगा तो नीचे से 999 मिली एम्पेयर पास करके जाएगा। ये मुझे शो करेगा 1 मिली एम्पेयर की रीडिंग गैल्वेनोमीटर। मैं समझ जाऊंगा ये 1 नहीं है, ये 1000 मिली एम्पेयर बन गया, क्योंकि 1 अगर ऊपर से गया तो 999 मिली एम्पेयर नीचे से भी गया है। तो ये 1 एम्पेयर को मैंने इस तरह से मेजर किया। ये तरीकाकार होता है बच्चों हमारे पास, ठीक है। मेरी बात समझ गए? तो इस तरीके के जरिए जो है वो हम इसको इस गैल्वेनोमीटर के साथ एक शंट रेजिस्टेंस लगा के लार्ज क्वांटिटी में करंट को भी मेजर करने के काबिल हो जाते हैं। ये गैल्वेनोमीटर हमें कितनी रीडिंग शो कर रहा है? 1 मिली एम्पेयर शो कर रहा है, लेकिन असल में करंट कितना पास कर रहा है? 1 एम्पेयर करंट पास कर, जो कि काफी बड़ा करंट है, ठीक है ना। तो इस तरह हमारा गैल्वेनोमीटर सेफ भी रहता है और हम आसानी से जो है ना वो मेजर भी कर लेते हैं कि कितना करंट जो है वो सर्किट में फ्लो करता हुआ जा रहा है। तो बच्चों ये था हमारा सिंपल सा आसान सा कंसेप्ट, ठीक है। अच्छा जी, अब ये थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है जी पेपर में जो आपने लिखना है। एज अ रिजल्ट व्हेन द लार्ज करंट फ्लो थ्रू द सर्किट only a small fraction of current passes through the galvanometer and the remaining large portion of current passes through the shunt resistance। ये वही बात है जो मैंने अभी आपको यहाँ पर बताई है। जब आप इस तरह से इसके साथ शंट रेजिस्टेंस लगाते हैं ना, अब ये इसके मुकाबले में बहुत, यानी कि लगभग 999 टाइम इससे ज़्यादा जो है ना वो इसकी रेजिस्टेंस होती है, ठीक है, लो होती है, सॉरी, इसकी रेजिस्टेंस उसके मुकाबले में लो होती है। शंट रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर से तकरीबन कोई 999 टाइम लो रखेंगे, तब आपका जो ये जो एम्पेयर का करंट है वो आसानी से ये मेजर करेगा, क्योंकि इसकी जो कैपेसिटी है वो तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिली एम्पेयर से 10 मिली एम्पेयर पास कर सकता है। उससे ज़्यादा इससे पास कराओगे तो जल जाएगा ये, है ना। तो इसलिए आपने ये रेशो रखनी है। तो यहाँ से अगर 1 एम्पेयर पास करके जाएगा तो ये 1000 मिली एम्पेयर बनता है। अगर रेजिस्टेंस की रेशो इस तरह से है कि 1 मिली एम्पेयर ऊपर से जाने देगा और 999 मिली एम्पेयर नीचे से जाने देगा, ठीक है, तो आप दोनों को ऐड करके बता सकोगे कि हमारे पास जो है ना वो इतना करंट सर्किट में फ्लो करता हुआ जा रहा है, ठीक है। तो यही बात उसने बताई कि जब इसमें से लार्ज अमाउंट ऑफ करंट पास करता है तो उसका बहुत थोड़ी सी फ्रैक्शन जो है वो गैल्वेनोमीटर से पास करती है और एक ह्यूज अमाउंट में करंट जो है वो शंट रेजिस्टेंस से पास करके चला जाता है। ये देख लो, ये 1 मिली एम्पेयर बहुत थोड़ी सी फ्रैक्शन है उसकी, और ये 999 मिली एम्पेयर बहुत बड़ी अमाउंट है करंट की जो कि नीचे से गुजर के जाती है। इसी वजह से हम ये शंट रेजिस्टेंस लगाते हैं। उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। तो ये सिंपल सा आसान सा इसका कंसेप्ट था, ठीक है ना। अच्छा, अब बच्चों हम बात कर लेते हैं जी वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस। वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस कितनी होनी चाहिए? पहले मैं आपको मैथमेटिकल डेरिवेशन बताता हूं, ठीक है, उसके बाद फिर मैं आपको थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन भी कर दूंगा, राइट। वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस निकाली तो क्या करेंगे, लेट्स RS एज अ शंट रेजिस्टेंस। हम ये जो यहाँ पे रेजिस्टेंस लगाई है ना, ये उसको मान लीजिए कि वो हमारी शंट रेजिस्टेंस है। RG जो है वो गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस है। ये जो यहाँ पर ये RG और ये RS मैंने दोनों मेंशन किए हैं।
ठीक है, ये शंट रेजिस्टेंस और ये गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस है, ठीक है। और आई जी हमारे पास वो करंट है जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन में मिल रहता है ना, ठीक है, ठीक है। आई जी करंट विच प्रोड्यूस मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, ये वो करंट है जो कि मैक्सिमम इसमें डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस कर देता है, ये वो करंट, इसको हम गैल्वेनोमीटर का करंट यानी आई जी से इसको हम डिनोट कर रहे हैं, ठीक है, विच प्रोड्यूस द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। ओके, अब जरा यहाँ पर इसकी जो मैथमेटिकल रिलेशन निकालेंगे उसके लिए क्या होगा, देखो ये दोनों के दोनों क्या है जी, हमारे पास ये और ये दोनों के दोनों रजिस्टर क्या है, गैल्वेनोमीटर का रजिस्टर, और ये दोनों क्या है, पैरेलल में वोल्टेज क्या होते हैं, सेम। तो इसके क्रॉस वोल्टेज और इसके क्रॉस वोल्टेज क्या होंगे, सेम। सो वी एस एंड वी जी गैल्वेनोमीटर के वोल्टेज और ये जो शंट रेजिस्टेंस उसके क्रॉस वोल्टेज क्या होंगे, सेम। V इज इक्वल टू आई आर होता है, ओहम लॉ का इस्तेमाल कीजिए, आई एस इंटू आर एस आ गया, यहाँ पर भी ओहम लॉ का इस्तेमाल कीजिए, V इज इक्वल टू आई आर, आई जी इंटू आर जी। आर जी मतलब ये गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस, ठीक है, और आई जी मतलब गैल्वेनोमीटर का वो करंट जो कि मैक्सिमम उसमें वो डिफ्लेक्शन शो करता है, और ये हमारे पास वो करंट शंट रेजिस्टेंस से पास करेगा, और आर एस शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू है, ठीक है। अच्छा, आपने शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है, आई एस जाके नीचे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, आई एस की वैल्यू हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं, ये देखो ये आई था ना, दो इसमें डिवाइड हुआ, आई जी में और आई एस में। अगर आई एस की वैल्यू निकालनी है वो कैसे मिलेगी हमें, आपको वो किरचॉफ का जो करंट ला है वो याद होगा कि एक पॉइंट की तरफ जो आने वाले तमाम करंट का सम है वो उस पॉइंट से जाने वाले तमाम करंट के सम के इक्वल होता है। अब आने वाला करंट क्या है, आई है, जाने वाले क्या है, आई जी और आई एस, ठीक है। तो आई बराबर है आई जी प्लस आई एस, उसी से हमें वैल्यू मिल जाएगी आई एस की, जो कि बनती है आई माइनस आई जी। मेरी बात समझ गई, ये तो बहुत आसान और सिंपल सी बात है भाई, ये दोनों जाने वाला करंट का सम बराबर है आने वाला आई है, सो आई इज इक्वल टू आई जी प्लस आई एस, वो इक्वेशन बन जाती है, उससे आपने आई एस की वैल्यू निकाली, आई एस इक्वल टू आई माइनस आई जी आ गया, ठीक है। अब ये वाली वैल्यू उठा के आपने ना यहाँ पर आई एस की जगह पुट कर देनी है, आई जी डिवाइडेड बाय आई माइनस आई जी मल्टीप्लाई बाय आर जी, ये आ गया वो हमारे पास मैथमेटिकल रिलेशन जिसके जरिए आप शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। अब जरा बात ध्यान से सुन लीजिए, जब आप शंट रेजिस्टेंस लगाते हैं ना तो आपको ये देखना होता है कि हमने कितनी जो क्वांटिटी में करंट जो है वो यहाँ से मेजर करना है, ठीक है ना। जैसे अब देखो ये जो इसकी कैपेसिटी थी वो कितनी थी, वो मिली एम्पेयर में मेजर करता था, मगर हमने जो है वो उससे 1000 टाइम ज़्यादा, ठीक है ना, 1000 टाइम ज़्यादा यानी एम्पेयर में करंट मेजर करना है, तो फिर उसकी रेशो उसी के मुताबिक एडजस्ट की जाती है। जैसे मैंने यहाँ पर इसकी वैल्यू जो है वो मैंने 999 एज्यूम किया है और इसकी वैल्यू मैंने 1 ओहम एज्यूम किया। असल में ये है, ये सिर्फ समझाने के लिए था, क्या होता बस इतना याद रखना आपने, जो भी इसकी वैल्यू है ना उससे आपने 1000 टाइम या उसके करीब करीब आपने लेस करनी है इसकी शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू। शंट रेजिस्टेंस इससे 1000 टाइम लेस होनी चाहिए, ठीक है ना। ये मैंने इसलिए वो एग्जांपल्स लिए हैं, वो वैल्यूज़ लिए जिनसे आपको समझने में आसानी हो, ठीक है, क्योंकि आपको ये बात समझ में नहीं आ रही होती ना, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है यहाँ पर, इसलिए मैंने वो वैल्यू ली जो कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। ओके, तो करंट क्या पास करना है उस पर ये डिपेंड करता है, ठीक है, और इस गैल्वेनोमीटर की अपनी रेजिस्टेंस क्या उसको देखा जाता है, ठीक है ना। इन चीज़ों को देखते हुए आप जो है शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो डिसाइड करते हो। जैसे मैंने यहाँ पर देखा कि जो भी इसकी वैल्यू उससे मैं 1000 टाइम लेस करूँगा तब ये 1 एम्पेयर के करंट को ये आसानी से मुझे कर पाएगा, ठीक है, बात समझ गए। ओके जी, उसके बाद देखो जी, अब यहाँ पर मैंने जो बातें आपको बताई है ना, ये मैंने यहाँ पर प्रूव भी करके आपको बतानी है। पहली बात ये कि अब हम करंट की वैल्यू को कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, करंट की वैल्यू को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हमें जो गैल्वेनोमीटर है कुछ ना कुछ डिफ्रैक्शन यहाँ पे शो कर देता है, जैसे ये 1 मिली एम्पेयर की जो रीडिंग है वो हमें दे रहा है, ठीक है, तो हमें तो सिर्फ ये नज़र आ रही होती है, तो हमें पता कैसे चलेगा अब इस सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है। तो वो हमारे पास ये फार्मूला है, वो हमने जस्ट इसी को रीअरेंज करके लिखा है और कोई नई चीज़ नहीं है। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है ना, इसको रीअरेंज करके लिखा, क्या किया, आर एस उधर जाकर मैंने डिवाइड कर दिया, ये आर जी वाई आर एस हो गया, ये मैं 2 इधर ले आया हूँ, ये डिवाइड हो रहा था ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया, ये मल्टीप्लाई हो रहा था नीचे आके डिवाइड हो गया, ऐसे दोनों के नीचे अलग अलग आई जी को डिवाइड किया, आई बाई आई जी बाई आई जी कट के हो गया 1, ये आई जी बाई आई जी हो गया, इज इक्वल टू आर जी डिवाइडेड बाई आर एस आ गया, ठीक है। अब 2 स्टेप इकट्ठे किए, -1 को उधर जाकर प्लस कर दिया, आई जी डिवाइड हो रहा था जाके मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये फाइनली हमारे पास करंट की रिलेशन आ गई है, ठीक है ना। तो अभी मैंने आपको बताया कि भाई इन दोनों की करंट जो रेजिस्टेंस की रेशो इस तरह सेट की हुई है कि जो करंट की रेशो मिलेगी वो 1:999 मिलेगी, है ना। ये जितना करंट यहाँ पे है उसका 999 टाइम करंट नीचे से पास करके जाएगा, ठीक है, यही बताया था ना आपको। अब हम चेक करते हैं कि वाकई अगर 1 मिली एम्पेयर का करंट ये शो करता है आपका गैल्वेनोमीटर, जो ऊपर वाले रजिस्टर ये मैंने गैल्वेनोमीटर के लिए शो किया है, तो फिर क्या वाकई हमारे पास 1 एम्पेयर या 1000 एम्पेयर की वैल्यू मिलती है हमें। चेक कर लेते हैं इसको, मैं आपको प्रूव करके बता देता हूँ। यहाँ से मैं इसको पहले रेज कर लेता हूँ, तो बच्चों आपको बिल्कुल यकीन आ जाएगा इसके ऊपर कि वाकई ये फार्मूला जो है वो हमारे पास ठीक है। अब देखिए जी, ये करंट का फार्मूला I इज इक्वल्स टू आई जी इंटू आर जी डिवाइडेड बाई आर एस और +1।
ये फार्मूला है, ठीक है। जो वैल्यूज़ मैंने एज्यूम की थी वो वैल्यूज़ वाकई ठीक हैं या नहीं ठीक, उसको यहाँ पे अब हम जो है वो क्लियर करेंगे। देखो जी, आई करंट जो है वो हमने मालूम करना है। ये जो रेजिस्टेंस है ये मान लीजिए हमारी ये गैल्वेनोमीटर वाली रेजिस्टेंस है, ठीक है, तो क्योंकि मैंने उसके जैसा मिलता जुलता सर्किट बनाया है। इसको मान लीजिए ये गैल्वेनोमीटर वाली रेजिस्टेंस है, ठीक है। और ये गैल्वेनोमीटर जो करंट हमें शो कर रहा है वो कितना शो कर रहा है जी, 1 मिली एम्पेयर शो कर रहा है, ठीक है। तो आई जी हमारे पास क्या है, आई जी वो करंट है जो कि गैल्वेनोमीटर से शो कर रहा है। कितना बात कर रहे हैं जी हमारे पास, आई जी 1 मिली एम्पेयर। लेट्स सपोज ये 1 मिली एम्पेयर करंट जो है वो हमें शो कर रहा है, ठीक है। अब इसमें आर जी और आर एस में क्या रेशो है, आर जी की तरह हमारे पास आर जी वो गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस वो ये है, वो है जी 999 डिवाइडेड बाय हमारे पास ये कितनी है जी 1 है और प्लस 1 कर लीजिए यहाँ पर, ठीक है। सो आई इज इक्वल्स टू 1 मिली एम्पेयर, ठीक है। ये हो जाएगा जी 999 और प्लस का 1 कितना बन गया 1000। सो आई इज इक्वल टू 1 मिली एम्पेयर मल्टीप्लाई बाय 1000, तो कितना बन गया जी 1000 मिली एम्पेयर जो कि इक्वल टू 1 एम्पेयर होता है। तो देख लो ये फार्मूले ने आपको भी वैल्यू प्रूव करके दे दी। तो आपने बस ध्यान रखना है, ये मैंने आपको जो एग्जांपल वैल्यू ली है 999 ओहम लिया और इसको 1 ओहम लिया, ठीक है ना। असल में क्या होता है, जो भी इसकी वैल्यू होगी उससे 1000 टाइम लेस जो है ना हमारे पास इसकी शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू होनी चाहिए, तभी आपका ये मिली एम्पेयर में मेजर करने वाला जो है वो एम्पेयर्स के अंदर मेजर करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है बच्चों। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है या किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप ज़रूर पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।